drugs used in the treatment of diabetes mellitus. We have seen about the carbohydrate, biochemistry of carbohydrate, which is very important to understand before understanding the carbohydrate chapter. कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, हाउ ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब इन द बॉडी, हाउ ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, हाउ ग्लूकोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, हाउ ग्लूकोज विल enter into the cell, and what is the fate of glucose. Glucose will be oxidized in different pathway. So that is nothing but the absorption, distribution and utilization of glucose. Glucose का use क्या होता है बॉडी में. So if you know these things, you will easily understand the diabetes. In this session we are going to preliminary information regarding the diabetes. So what do you mean by diabetes, how there is a utilization of glucose in the body, right? And after that we'll see insulin preparations, okay? Types of diabetes, reasons for diabetes. So all these things we are going to cover today. टाइम में आने का है, सभी लोगों ने टाइम में आने का है, ओके? सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंटी डायबिटिक ड्रग, एंड इट इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम. कौन सा भी एग्जाम होने तो आपका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर. हर एक एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है डायबिटीज़, एंटी डायबिटिक ड्रग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज from India, they are suffering from some kind of diabetes, some kind of problems with the sugar, some kind of problem with the glucose. So insulin and anti-diabetic drugs, right? So first we have seen about the carbohydrates, and after that immediately we are seeing this anti-diabetic, because what is the reason. अभी कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया है, अभी डायबिटिक चालू किया है. उसका रीज़न क्या है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता है कि मोनोसैकेराइड से है, डाइसैकेराइड से है, ग्लाइकोलिसिस से होता है, क्रेब साइक्लेज से होता है, ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन यहाँ से होता है, कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सेल में ग्लूकोज का एंट्री कैसे होता है, एंड ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये अगर आपको मालूम है नॉर्मल प्रोसेस, तो एबनॉर्मल प्रोसेस क्या है कि डायबिटीज़. नॉर्मल प्रोसेस मालूम है, एबनॉर्मल प्रोसेस डायबिटीज़ है. तो एबनॉर्मल प्रोसेस क्यों हो रहा है मालूम हो गया ना. सो दैट विल गिव यू टारगेट्स फॉर एंटी डायबिटिक ड्रग्स. सो ओके, सो दैट्स वाई. सो फर्स्ट विल सी utilization of glucose, okay, in the body, how glucose is utilized in the body, okay? So what are the factors which increases the glucose level in the body, what are the factors which decreases the glucose level in the body? So positive factors and negative factors, or you can say hyperglycemic factors and hypoglycemic factors. So hyperglycemic factors means what? Hyper means more, extra, plus. So hyper means more, extra, plus, और हाइपर मीन्स ज़्यादा. ग्लाइसेमिक मीन्स व्हाट? ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज. सो ग्लूकोज को बढ़ाने वाले फैक्टर्स, बॉडी में ग्लूकोज कौन बढ़ाएगा तो ये फैक्टर बढ़ेंगे, ठीक है? बॉडी में ग्लूकोज कम कौन करेगा तो ये फैक्टर करेंगे. हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर्स मीन्स दोज फैक्टर्स विच इंक्रीजेज द ग्लूकोज इन द बॉडी, एंड हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर मीन्स दोज फैक्टर्स विच विल डिक्रीज द ग्लूकोज इन द बॉडी, राइट? सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये बेसिक होता है. इफ यू डोंट नो द बेसिक, then how you can remember the drugs used in the diabetes. So that's why we are seeing these basics. So hyperglycemic factors, okay? So who will increase the sugar level of your body, or how there will be increase in the blood glucose level. blood में glucose level, blood में glucose आता कहाँ से है, okay? So hyperglycemic factor, so those factors which increases the glucose level in the body known as hyperglycemic factor. Sources of blood glucose. So blood will get glucose from which sources? So these sources, whatever absorption from the GIT. आपने जो खाना खाया है, स्टार्च, आपने जो रोटी खाया है, चपाती खाया है, जो भी खाया है, so everything is in a starch form. So starch is, you have taken starch, so that starch will be metabolized, that starch will be broken down into the GIT. आपके GIT में enzymes होते हैं, so it will break down the starch, it will be converted into oligosaccharides. Oligosaccharides will be converted into disaccharides, and disaccharides will be absorbed, or disaccharides will be converted into monosaccharide, and then monosaccharide will be absorbed from GIT, okay? So absorption of glucose or sugars from GIT, right? So it will increase the blood glucose level. Then glycogenolysis. So what do you mean by glycogenolysis? So we have seen breakdown of glycogen to the glucose. Glycogen क्या है? Storage form of glucose है. तो ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है? ग्लाइकोजन, राइट? ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो वो क्या है? पॉलीमर है. तो इसको ब्रेक डाउन जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज. सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल इंक्रीज द शुगर और
will increase the glucose in the blood, right? Second factor. Third factor, gluconeogenesis. Gluconeogenesis. What do you mean by gluconeogenesis or neoglucogenesis? So neoglucogenesis आपने देखा है बायोकेमिस्ट्री में. So synthesis of glucose from non carbohydrate precursor. अगर अमीनो एसिड है या फिर आपका लिपिड है या फिर कोई दूसरा फैक्टर है, ओके. सो विटामिन्स, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. सो दैट इज नोन एज द gluconeogenesis, neo or neoglucogenesis. So neoglucogenesis, so absorption of glucose from the GIT will increase the glucose in the blood. Glycogenolysis will also increase the glucose in the blood. Then gluconeogenesis will increase the glucose in the blood. जैसे अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा, that is a gluconeogenesis. So these are the three factors which increases the blood glucose level. So what is the normal blood glucose level? प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना होता है? So फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब जब आप एम्प्टी स्टमक में हो, जैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह उठे हो, आपने कुछ खाया नहीं मॉर्निंग में और आपका ब्लड शुगर लेवल चेक किया, तो उसको बोलेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. फास्टिंग ब्लड, सो विदाउट एनीथिंग इन द स्टमक, सो विदाउट एनीथिंग आफ्टर द, ठीक है. या फिर आपने मील के बाद में 5 या 6 घंटे बाद में शुगर चेक किया, दैट इज ऑल्सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. सुबह सुबह गया फास्टिंग ब्लड. सो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? सो इट इज अराउंड 70 to 110. तो कुछ बुक्स में 60 to 120 भी दिया है. सो यू कैन रिमेंबर 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज अ नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल? सो यू कैन से 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. नाउ सेकंड दिया है पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब ये टर्म क्या है पोस्ट प्रांडियल? सो पोस्ट प्रांडियल मतलब क्या है? आपने लंच किया और लंच के बाद में 2 या 3 घंटे के बाद में शुगर लेवल चेक किया. सो आफ्टर द लंच और डिनर और मील, सो आफ्टर मील 2-3 आवर्स और आफ्टर द मील, दैट इज नोन एज अ पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल. दैट इज नोन एज अ पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल विदाउट मील्स ऑन अ एम्प्टी स्टमक. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 60 to 120 या फिर 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. पोस्ट पेरेंडियल मीन्स आफ्टर द मील, आफ्टर 3 hours ऑफ मील, एंड इट इज अराउंड लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज याद रखो, पोस्ट पेरेंडियल 140 से लेके 140 से कम होता है, ओके. इससे ज़्यादा अगर हो गया 150-160 तो डायबिटीज़. नाउ these factors will increase the blood glucose level. Again, this is a source of glucose, right? Source of glucose for blood. Now what are the hyperglycemic hormone? कौन से ऐसे हार्मोन है बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएंगे? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. सो ग्लूकेगॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकेगॉन? सो ग्लूकेगॉन will break down the glycogen and convert into glucose. So glucagon का काम क्या है? So it will break down the glycogen and convert it into glucose. So it will increase the glucose level. Then adrenaline, it is also known as epinephrine. Adrenaline जो होता है, it is a sympathetic hormone. Okay, so it is a neurotransmitter of sympathetic nervous system known as adrenaline, or it is also known as epinephrine. ठीक है, so it will also increase the blood glucose level. Glycogenolysis करता है. Then corticosteroids will also increase the blood glucose level. Then growth hormone, so growth hormone will also increase the blood glucose. Thyroid hormones will also increase the blood glucose level. तो बेसिकली ये जो ऊपर वाले फैक्टर्स है, so they are the sources of glucose. These are the sources of glucose. Okay, these are the sources of glucose. These are the hormones, hormonal control of glucose. These are the hormones which increases the blood glucose level. ये क्या करेंगे? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करेंगे, राइट? ओके. नाउ फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज विल बी यूज्ड फॉर द एनर्जी सोर्स, यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ब्लड में से ग्लूकोज आपके सेल में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलाइसिस, टीसी साइकिल वगैरह, एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज बाय द सेल्स एंड टिश्यू, दैट इज एनर्जी. ओके. व्हाट आर द डिफरेंट हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स? ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स. तो ये जो हार्मोन्स है दे आर नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स.
ये शुगर लेवल बढ़ाएंगे और ये जो हार्मोन है ये शुगर लेवल कम करेंगे. सो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, सो व्हाट इज दैट? दैट इज इंसुलिन. Insulin is a hypoglycemic hormone. So insulin is secreted. It is produced by beta cells of Langerhans. कौन से cells? Beta cells of Langerhans of pancreas. Beta cells. Pancreas में different type के cell होते हैं. Alpha cell, beta cell, delta cell, PP cell. Okay. So out of that beta cell will produce insulin. Okay. And alpha cell will produce glucagon. These are the hormone. So हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन. हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो ग्लूकागॉन विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी एंड इंसुलिन विल डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, ग्लूकोज का फोर्सफुली सेल के अंदर एंट्री करवाता है एंड वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है फिर, तो ग्लूकोज लेवल बॉडी का कम हो जाएगा. ठीक है. बट ग्लूकागॉन विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, रिमेंबर. तो आपको यहाँ पे बहुत सारी मतलब जिनका एम भी हो चुका है उनको भी ये कन्फ्यूजन है कि ग्लूकागॉन बॉडी का शुगर लेवल कम करता है या बढ़ाता है. इंसुलिन विल डिक्रीज द शुगर लेवल ऑफ योर बॉडी. इंसुलिन विल डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड दिस ग्लूकागॉन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. यू हैव टू रिमेंबर. ओके. नाउ व्हाट आर द हार्मोन्स? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड का शुगर लेवल कम करने वाले कौन से हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन और हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स. सो ओके. Hypoglycemic hormone is insulin. Okay. Hyperglycemic hormone is the these are the hyperglycemic. Insulin is the hypoglycemic. These are the factors which increase the blood glucose level, that is source of glucose. And hypoglycemic factors means these are the factors which decreases the blood glucose level. So for example, glycolysis, TCA cycle. Glucose is oxidized to carbon dioxide in water, TCA cycle. Then glycogen synthesis. Okay, glycogen synthesis and lipogenesis. These factors will decrease the glucose level. तो पहले वाले जो ऊपर वाले फैक्टर है, ओके, these factors these are responsible for the these are the factors responsible for the increase in the blood glucose level. So increase in the blood glucose level. ठीक है, ये increase करेंगे, right? Increase in the blood glucose level. Now these are the factors which decreases the blood glucose level, which will decrease the blood glucose level. So you have to understand this. Okay. Now next we'll see how ब्लड ग्लूकोज इज रेगुलेटेड. रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन कंट्रोल करता है ब्लड के ग्लूकोज को? हु इज द ग्लूकोज मेंटर? सो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन द लीवर इज द ग्लूकोज मेंटर. ओके. सो फास्टिंग स्टेट हाई ग्लूकोन, मतलब जब आपने कुछ खाना नहीं खाया है तो उस टाइम पे आपके ब्लड शुगर लेवल कौन रेगुलेट करता है? तो ग्लूकागॉन करता है. एट द फास्टिंग स्टेज, ओके, blood glucose level is maintained by glycogenolysis and gluconeogenesis. Adipose tissue will release the free fatty acids. ठीक है. सो जब आप खाना नहीं खाया आपने, जब आपके बॉडी में एनर्जी लगता है उस टाइम पे जब आपके बॉडी में ग्लूकोज कम है, दैट इज अ फास्टिंग स्टेट. सो एट दैट टाइम देर इज अ हाई लेवल ऑफ ग्लूकागॉन. तो ग्लूकागॉन का लेवल हाई मतलब वो हार्मोन का ज़्यादा लेवल होगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन? टू रिलीज द glucose from glycogen. Okay. So whatever glucose that is taken in the form of diet, that is absorbed, okay, that is stored in the liver in the form of glycogen. Okay. Now when you are in a fasting state and you need a glucose, आपके मसल को काम करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एंड फॉर एनर्जी यू नीड अ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज कैसे बनेगा आपके बॉडी में? तो आपने खाना नहीं खाया, तो फिर देर इज अ ग्लाइकोजेनोलाइसिस. सो in this glucagon will cause glycogenolysis. Glycogen कहाँ पे स्टोर होता है? Glycogen is synthesized and stored in the liver. You know that liver में क्या होता है? Glycogen stores होता है, right? So this glucagon will cause glycogenesis. Okay. So whatever absorbed glucose from diet, that will be stored in the form of glycogen in the liver, glycogenesis. Okay. And muscles, peripheral tissue will also synthesize glucose from non-carbohydrate precursor known as a gluconeogenesis, and glycogen will be stored in the liver. Okay. When there is a starvation, when there is a need, so glycogen will be break down and converted into glucose, that is glycogenolysis, and also gluconeogenesis. So gluconeogenesis takes place from acetyl CoA. आपने मालूम होगा acetyl CoA pyruvic acid है ना, that is synthesized in the muscles and liver by breaking the lipids. So that is a lipolysis. So at a fasting table, at postprandial level, मतलब
जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तब क्या होता है, यहाँ तो ग्लूकोज कम है आपकी बॉडी में, फास्टिंग लेवल है. सो बी मीन्स एट अ पोस्ट पेरेंडियल स्टेट व्हेन देर इज हाई ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, बिकॉज एब्सॉर्प्शन हो चुका है ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा, है ना, ग्लूकोज है, तो इंसुलिन विल कम इन ए पिक्चर. इंसुलिन विल कम इन ए पिक्चर. जब ग्लूकोज कम होता है आपकी बॉडी में तो हीरो कौन है, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो हीरो बनता है ग्लूकेगॉन. तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है. इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है बॉडी में तो इंसुलिन बिकम्स हीरो, इंसुलिन हीरो बनता है. तो वो क्या करेगा, इंसुलिन विल कॉज ग्लाइकोजन सिंथेसिस. इंसुलिन विल कॉज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मतलब ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है बॉडी में पॉलीमर बनाएगा एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द लीवर. जब ग्लूकोज बॉडी में नहीं है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा. सो ग्लूकेगॉन विल ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू रिलीज द ग्लूकोज इन द बॉडी व्हेन ग्लूकोज इज नॉट देयर. जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन वही ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है, ग्लाइकोजन बनता है. ओके, अगेन दैट ग्लूकोज इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी इन द पेरिफेरल टिश्यू. सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड. सो लिपोजेनेसिस. जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो इन ग्लूकेगॉन का, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकेगॉन का काम होता है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करना, और जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का काम होता है कि उसका विलेवाट लगाना, उसको ठिकाने लगाना. ठीक है, सो मतलब सिंपल है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज कम है, सो ग्लूकोज चाहिए आपकी बॉडी को ज़्यादा, तो वो उस टाइम पे कौन काम आएगा, ये ग्लूकेगॉन. सो इट विल कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट विल रिलीज द ग्लूकोज एंड आल्सो मसल में भी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा, मतलब मसल में भी ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस. एंड एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, तभी तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा. जब कम है, जब ज़्यादा है, जब बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया आपने, खाना खा लिया, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बॉडी में. सो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर. दैट इज डन बाय इंसुलिन. Insulin will increase the glycogen synthesis. So glycogen synthesis, and also that glucose will be utilized by muscle for energy purpose. Okay, and in the or surplus glucose also will be converted into lipids, lipogenesis. Okay, so that's how there is a regulation of glucose. तो यहाँ पे देखो, in case of fasting state, blood glucose level is maintained by glycogenolysis, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. नया ग्लूकोज बनाएगा अमीनो एसिड से, या फिर ग्लाइकोजनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा. सो इन द फास्टिंग स्टेट, मतलब जब ग्लूकोज नहीं है बॉडी में तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा इन द एडिपोज टिश्यू. ठीक है, एंड फैटी एसिड रिलीज हो जाएगा. इन द पोस्ट पेरेंडियल स्टेट, मतलब जब आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाया आपने तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. सो एट दैट स्टेट glucose level is high and it is insulin will come in picture. Insulin will convert glucose into glycogen and also that inhibition of glycogenolysis. So that's how regulation of glucose regulate कैसे होता है. Now hemostasis of blood glucose, combined action of glucagon and insulin. तो ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन ये दो हार्मोन्स हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे. So these are the two hormones which will control your blood sugar level. What are those? Insulin and glucagon. Insulin and glucagon, these are the two hormones. They work in a synchronous manner to control the blood glucose level. So hemostasis मतलब क्या, कैसे मेंटेन करेंगे ब्लड ग्लूकोज. नॉर्मल combined action of insulin and glucose, okay, will keep the blood sugar level within a normal limits. hemostasis मतलब नॉर्मल लिमिट. ठीक है, ज़्यादा नहीं कम नहीं. हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है दैट विल स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रेशन, ओके, शोन इन द ग्रीन पाथवे. एंड लो ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट विल कॉज ग्लूकेगॉन सिक्रेशन, ब्लू पाथवे. ठीक है, अगर आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, लो ब्लड ग्लूकोज, सो व्हाट विल हैपन, पैंक्रियाज विल सिंथेसाइज one hormone known as the insulin. So alpha cell of pancreas will release the glucagon. What will glucagon do? It will break down the glycogen. Okay,
that is known as a glycogenolysis, and there is a release of glucose in the blood. Okay, there is a release of glucose in the blood. अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है तो ग्लूकेगॉन काम में आता है. सो ग्लूकेगॉन तब हीरो होता है. ठीक है, जब आपके बॉडी में ब्लड ज़्यादा है, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है. ठीक है, जैसे ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, अभी देखो ये इसको अभी इसका नींद खुला है. सो व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, सो पैंक्रियाज will synthesize or will release the glucagon. So particularly alpha cells of pancreas, Langerhans of pancreas, that will release the glucagon. जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकेगॉन रिलीज होगा. ग्लूकेगॉन पैंक्रियाज में से ग्लूकागॉन क्या करेगा? इट विल कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा एंड इट विल रिलीज द ग्लूकोज इन द ब्लड. अभी मान लीजिए ये सिचुएशन कब है? जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या है? कम है. ठीक है, ये वाला सिचुएशन जो है when there is a less glucose in the body, so there is release of glucagon which will causes glycogenolysis, breakdown of glycogen and release of glucose in the blood. Okay, now when there is a excess of glucose in your blood, when there is a high level of glucose in the blood, high blood glucose level, ठीक है, क्या होगा? Again pancreas will synthesize one hormone. So beta cells of Langerhans of pancreas will release the insulin, and insulin what will it do? It will increase the peripheral utilization of glucose. It will increase the peripheral, okay, it will stimulate the tissues to utilize the glucose. तो ये ग्लूकोज को इन सेल के अंदर डाल देगा. सेल कौन सा? जो मसल सेल हो गए. सो पेरिफेरल टिश्यू और सेल विल टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. सो देयर इज अगेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन. ओके, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कैसे होता है? कंबाइन एक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन. तो इंसुलिन ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज हो गया तो उसको यूटिलाइज करने के लिए फोर्स करेगा टिश्यूज़ को एंड विल बिंग नॉर्मल. कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ाएगा, ज़्यादा हो गया ब्लड ग्लूकोज तो इंसुलिन कम करेगा. ठीक है, तो इतना याद रखो, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, दिस टू हार्मोन्स दे कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, क्लियर? ओके, so when there is a less blood glucose level, glucagon will be released from the alpha cells of Langerhans of the pancreas. When there is a high amount of glucose in the blood, so insulin will be released. Insulin will be released and it will increase the utilization of glucose so that the optimum level of glucose will be maintained. Normal level maintain होना चाहिए. So now if this insulin is no more in the blood, अगर इंसुलिन बनता ही नहीं बॉडी में, ये पैंक्रियाज के सेल्स खराब हो गए, इंसुलिन नहीं बनेगा, सो व्हाट विल हैपन? सो देयर विल बी एक्सेस ब्लड लेवल इन द, देयर विल बी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा. इंसुलिन नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा एंड यू विल सफर फ्रॉम डायबिटीज. सो इंसुलिन नहीं होने के रीज़न बहुत सारे हैं. सो देयर माइट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, और देयर माइट बी ऑपरेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैंक्रियाटिक सेल, or there might be genetic origin, or there might be, if pancreatic cells are intact they produces the insulin, but if there is a resistance of insulin to your tissue, अगर ये टिश्यू जो है इसको रेजिस्टेंस हो गया, ये इंसुलिन का सुनना बंद कर देंगे. इंसुलिन क्या करता है? इनको बोलता है कि नहीं चलो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया बॉडी में, तुम खा लो इसको, ये उसका इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, लेकिन अगर ये उसका सुनेगी नहीं, ये अगर अपना मन का ही करने लगी तो कैसा होगा? Reasons for diabetes is nothing but the destruction of beta cells in the pancreas, so lack of insulin. Second reason genetic origin. Third reason क्या होगा? There is a resistance of cells to the insulin. So this is the combined action of glucagon and insulin on a blood sugar level. Effects of hormone on a glucose level. ये समझना चाहिए आपको, अगर ये नहीं समझेगा तो डायबिटीज नहीं समझेगा. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है. सो इंसुलिन कैन बी कॉल्ड एज अ hypoglycemic hormone. Insulin can be called as a hypoglycemic. So it will lower the blood glucose level. It will favor the synthesis of glycogen. ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करो, राइट? सो इट विल प्रमोट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. इंसुलिन विल आल्सो प्रमोट द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, राइट? इट विल आल्सो प्रमोट द, इट आल्सो इनिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इंसुलिन का काम क्या है कि बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा है उसको कम करना है.
अभी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, उसको कम करना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं कम करने के? पहला तरीका ये है कि जो बना है ग्लूकोज, आपके बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो चुका है, उसका पॉलीमर स्टोरेज फॉर्म बनाओ। तो क्या है स्टोरेज फॉर्म, क्या है उसका? ग्लाइकोजन। सो दैट्स वाई इंसुलिन विल प्रमोट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया तो सेकंड ऑप्शन, जो ग्लूकोज बढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाओ, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, सेल में घुसाड़ो उसको, और सेल में जाने के बाद में उसका ऑक्सीडेशन होगा। दैट इज नथिंग बट द ग्लाइकोलाइसिस। सो इट विल प्रमोट द ग्लाइकोलाइसिस। सो इंसुलिन विल इंक्रीज द ग्लाइकोलाइसिस, will increase the glycogen synthesis, will decrease the blood glucose level and will inhibit the gluconeogenesis। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पे कर सर। तो यहाँ पे सिंथेसिस का जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दिस इज द एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन शुगर लेवल। तो इंसुलिन का एक्शन याद रखो, क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। सो इंसुलिन विल नॉट डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलिन विल डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलिन विल नॉट डू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एक्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का और एक बार देखो, इट विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, इट विल प्रमोट द ग्लाइकोलाइसिस एंड इट विल इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नाउ अभी सेकंड हार्मोन, व्हाट इज द ग्लूकेगॉन, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन ऑन द ब्लड शुगर लेवल। तो ग्लूकेगॉन इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है। ग्लूकेगॉन क्या करेगा? सो इट इज नोन एज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक, ये ग्लूकोज बढ़ा देगा। सो इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज इन द बॉडी, सो इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज, इट विल प्रमोट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा। सो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकेगॉन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, विल प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, विल इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज कम है ना, इसलिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करेगा, बट इट विल डिक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड आल्सो इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस। सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दे वर्क्स टुगेदर टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है। सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? जो करता है उसके अपोजिट ग्लूकेगॉन करता है। तो ग्लूकेगॉन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। तो इंसुलिन कम करता है ग्लूकोज को, तो इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ग्लूकेगॉन इंसुलिन को ग्लूकेगॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है बॉडी में, तो इसलिए ग्लूकेगॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। नाउ अगेन थर्ड हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो दे आर आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करेंगे? जैसे आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। सो वो क्या करेगा? विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, विल इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगेन विल रिलीज द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम मसल। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और कॉर्टिसोन, जितने भी कॉर्टिसोन वगैरह, देन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन सिंपैथेटिक हार्मोन है, तो ये कॉर्टिसोन के अपोजिट काम करेगा। कॉर्टिसोन कैसा है? ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, अभी ये कम करेगा। सो इंक्रीज द ओके, एड्रेनालिन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, सेम ही करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज उस टाइम पे आपको काम करना होता है, रनिंग के लिए आपको शुगर चाहिए। एड्रेनालिन और इट इज नोन एज इपिनेफ्रिन, सो इट इज आल्सो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, विल प्रमोट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, विल इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड विल फेवर द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखो लास्ट वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। हार्मोनल कंट्रोल्स और हार्मोनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक, सो इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीजेज द ग्लाइकोलाइसिस एंड मेटाबोलाइज द फैटी एसिड। देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक बार ऐसा आ चुका है गेट एग्जाम में। सो ये हार्मोन के नाम देंगे एक कॉलम पे, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, देन कॉर्टिसोल और ACTH, एड्रेनालिन एंड देन ग्रोथ हार्मोन। और दूसरे कॉलम में देंगे हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। सो रिमेंबर इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक, कम करेगा शुगर लेवल। ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक, बढ़ाएगा। देन आपका कॉर्टिसोल इज अ हाइपरग्लाइसेमिक, शुगर बढ़ाएगा। इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन अगेन हाइपरग्लाइसेमिक, बढ़ाएगा। एंड ग्रोथ हार्मोन भी क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक,
ठीक है, याद रखो। हाइपरग्लाइसेमिक ज़्यादा, हाइपोग्लाइसेमिक वाला कौन है? इंसुलिन है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हो गया, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन या फिर डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन या फिर इंसुलिन इज नो मोर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, सो डायबिटीज विल बी देयर इज अ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज मतलब क्या? सो डायबिटीज मीन्स देयर इज अ एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी और ग्लूकोज इन द ब्लड। सो व्हाट इज मीन बाय डायबिटीज मेलिटस? सो डायबिटीज मेलाइटस, सो इट इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसमें 2-3 ऑप्शन थे, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, और 1-2 डिसीज के नाम थे। सो डायबिटीज इज नथिंग बट द डायबिटीज मेलिटस इज नथिंग बट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है ना, किसके मेटाबॉलिज्म में? आपके, मेरे या किसके? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ द फैक्टर्स लाइक इंसुलिन डिफिशियंसी, सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डायबिटीज मेलिटस? फर्स्ट फैक्टर इज नथिंग बट द इंसुलिन डिफिशियंसी। अगर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, ग्लूकोज को कम करता है बॉडी में। बट ये नहीं है तो क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा एंड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इज नथिंग बट द डायबिटीज। सो diabetes is a metabolic disorder known as a chronic metabolic disorder due to the different factors like insulin deficiency, then insulin resistance। insulin deficiency मतलब क्या? अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में तो उसको बोलेंगे इंसुलिन डिफिशियंसी। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? इंसुलिन बॉडी में बन रहा है बट वो उसका कोई सुन नहीं रहा है ना, होता है ना आपका, मतलब होता है ना कि इंसुलिन बॉडी में है लेकिन उसका सुनता ही नहीं कोई, मतलब सेल नहीं सुनेंगे। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस। देन इटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस, मतलब क्यों होता है? सो इट मे बी आइदर जेनेटिक ओरिजिन। डायबिटीज क्यों होता है? इट मे बी आइदर जेनेटिक और ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स और ड्रग्स। सर्टन ड्रग्स विल आल्सो कॉज डायबिटीज। कुछ ड्रग्स ऐसे थे दे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, सो दे आर द हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स, ओके, एंड एक्सरसाइज, ओके। सो दीज आर द इटियोलॉजी फैक्टर्स और विच आर द रीजन्स फॉर डायबिटीज़। क्या रीजन्स है? एक तो है आपका जेनेटिक रीज़न, दूसरा है आपका बैड ईटिंग हैबिट, तीसरा है आपका ड्रग्स, चौथा है आपका एक्सरसाइज। नाउ कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय, डायबिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो डायबिटीज़ इज कैरेक्टराइज बाय ग्लाइकोसयूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ओके। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या? हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। सो हाइपरग्लाइसीमिया मैंने बोला था मिया एंड रिया। मिया मतलब ब्लड, रिया मतलब यूरिन। तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसिम मतलब ग्लूकोज एंड मिया मीन्स ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया होगा, ठीक है। डायबिटीज़ कैरेक्टराइज बाय, डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का सिम्टम कौन सा है? हाई ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, दैट इज अ ग्लाइकोसूरिया। हाइपरलिपिडीमिया मतलब क्या? लिपिड लेवल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस कम, मतलब नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो जाए। एंड समटाइम्स कीटोनिमिया, मतलब बॉडी ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे, कीटोनिमिया। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल? सो वी ऑलरेडी सीन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो व्हाट इज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? सो इफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स, मतलब अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उससे ज़्यादा है, सो इफ योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? ओके, सो 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट इफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 160 मिलीग्राम और पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद में जो शुगर लेवल है, सो आफ्टर द मील, आफ्टर 2 hours ऑफ मील, इफ योर ब्लड शुगर लेवल इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सो डायबिटीज मेलिटस इज डायग्नोज्ड। दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। इसलिए नॉर्मल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग कितना होता है? 60 to 120, ठीक है। फास्टिंग वो कितना हो गया यहाँ पे? 126, ज़्यादा हो गया। पोस्ट पेरेंडियल वहाँ पे बोला है लेस देन 200, ओके, बट यहाँ पे मोर देन 200 है। सो इफ योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन नॉर्मल, इफ पोस्ट पेरेंडियल इज मोर देन नॉर्मल, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कितने टाइप के डायबिटीज के? देखो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज सिर्फ एक टर्म नहीं है, डायबिटीज
means not only diabetes. So there are different types. First is type 1 diabetes. First is type 1 diabetes. Type 1 diabetes is known as a juvenile onset diabetes. Juvenile onset diabetes इसको बोलते हैं. It is also known as a insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. ठीक है. टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज एंड इट इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. तो आपको याद रखना है टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, इसमें इंसुलिन ही नहीं होता है. ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस. 2-3 बार रिपीट क्यों कर रहा हो? पागल थोड़ी हो गए. रिपीट इसलिए कर रहा हो कि आपको अभी ये फिट होना चाहिए माइंड में. टाइप 1 इज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस और आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. नाउ इन दिस केस पेशेंट हैज टू लिव ऑन इंसुलिन लाइफ टाइम. जिसको टाइप 1 डायबिटीज है ना, उसको इंसुलिन लेने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं. पूरी जिंदगी भर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो कहाँ से लेगा? बॉडी में तो इंसुलिन लगेगा, नहीं तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का यूज़ ही नहीं कर पाएगा वो, है ना. उसके बॉडी में ग्लूकोज बहुत रहा है, उसका यूज़ कुछ नहीं कर पा रहा हो. क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं है. इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. तो इंसुलिन अगर नहीं है तो बाहर से देना पड़ेगा. बाहर से कैसे दे सकते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन? सो ऑब्वियसली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट हैज़ टू लिव लाइफ टाइम ऑन अ इंसुलिन. सो व्हाट हैपन्स इन द टाइप 1 डायबिटीज? क्यों होता है? देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. ओके, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. मोस्ट ऑफ देम आर ऑटो इम्यूनोटाइप. ये क्या होता है ऑटो इम्यूनो? मैं बोलता हूँ आपको. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक लैंगरहांस, they are no more. They are destroyed. Why? Because of the autoimmune condition. Autoimmune मतलब क्या? आपके खुद के बॉडी के सेल क्या करते हैं? So your own body cell will be treated as a antigen. आपके खुद के बॉडी के सेल एंटीजन एज अ ट्रीट किए जाएंगे, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगे, वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. नॉर्मली एंटीजन कौन होता है? बाहर से कोई प्रोटीन आ गया आपके बॉडी में, जैसे बाहर से कोई प्रोटीन आ गया, सो दैट इज एंटीजन टू योर बॉडी. That is a foreign protein. But in this case, in case of autoimmune disease, your own body cells, your own body protein, your own body component, they are considered as a antigen, and against that antibodies are synthesized, and due to antigen antibody reaction there is a destruction of that cell. So destruction of pancreatic cells, it is one of the most important reason for the type 1 diabetes. Type 1 is also known as juvenile onset and also known as insulin dependent diabetes mellitus. Okay. Now type 2 diabetes mellitus. So type 2 is known as a maturity onset diabetes. Type 2 is known as a maturity onset diabetes. It is also known as a non-insulin dependent diabetes mellitus. Non-insulin, इसमें क्या है? इंसुलिन नहीं लगेगा आपको. यहाँ पे इंसुलिन नहीं लगेगा मतलब क्या है इसका? कि ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा है. सो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन. ओके, so type 2 diabetes mellitus, there is a known as a maturity onset diabetes and it is also known as a non-insulin dependent diabetes mellitus. So इसमें इंसुलिन नहीं लगेगा आपको. ठीक है, so there is no need of insulin to treat this type 2 diabetes mellitus. In case of emergency condition, अगर बहुत ही शुगर लेवल बढ़ गया बॉडी में, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन डायबिटीज टाइप 2 में भी इंसुलिन यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन. बट patient can survive without insulin. Patient can live without insulin. ठीक है. In type 1 patient live on insulin lifetime. टाइप 1 में इंसुलिन लगना ही लगना है. टाइप 2 में इमरजेंसी में लग सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इंसुलिन नहीं तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन है. Why type 2 diabetes mellitus is there? So there is a abnormality of glucose receptor. Abnormality of glucose receptor on a beta cell. Patient has the insulin in the plasma but response to the glucose concentration, does not respond to the glucose concentration. Okay, has the insulin in the plasma but the response to glucose concentration does not respond to either does not respond to glucose. Okay, but insulin resistance is there. Okay, मतलब वही कि does not respond to insulin. Patient has a insulin in the plasma
but response to glucose concentration is decreased because of the insulin resistance. Now this occurs in the obese adult, जिनका बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा है ना, जो खाने में कंट्रोल नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओके, जैसे लगता है कि उनके पेट में बेबी है. सो इट इज़ ऑकर्स इन द ओबेज अडल्ट, जो ओबेसिटी है जिसको, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आएगा. एंड कॉम्प्लिकेटेड बाय कीटोएसिडोसिस, मतलब कीटोन बॉडीज बन जाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका. कीटोएसिडोसिस इज द फीचर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज. तो डायबिटीज, राइट, डायबिटीज टाइप 2, इसमें 1 में भी होता है. बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, देर इज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. सो इसमें क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग. ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, OH. सो टाइप 1 के ट्रीटमेंट में सिर्फ इंसुलिन, टाइप 1 के ट्रीटमेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा. टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लगेंगे, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इंसुलिन भी लग सकता है, राइट. नाउ टाइप 3 डायबिटीज़, सो इट इज़ ड्यू टू अनदर रीजन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स. ठीक है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बोला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रॉब्लम है, या फिर दूसरा थायराइड का प्रॉब्लम है. सो दैट इज ड्यू टू ऑल्सो, दैट इज थायराइड के प्रॉब्लम से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के प्रॉब्लम से. सो इफ देयर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, सो टाइप 3 डायबिटीज इज देयर. ओके, नाउ टाइप 4 डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मिल्टस. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. टाइप 4 डायबिटीज मिल्टस इज नोन एज जेस्टेशनल. जेस्टेशनल मतलब क्या, जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी. जब प्रेगनेंसी में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं टाइप 4 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेल्टस. ओके, इट इज़ ट्रीटेड विद द डाइट एंड इंसुलिन. सो दीज आर द टाइप 4 डायबिटीज़. डायबिटीज़ के टाइप कितने हैं, 4. कौन से है, टाइप 1 इज अ डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, और जुवेनाइल जिसमें इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस. ओके, एंड और ड्यू टू एटोइम्यूनोटाइप, मोस्ट ऑफ देम आर एटोइम्यूनोटाइप. इसमें इंसुलिन लगने ही वाला है, पेशेंट लिव ऑन इंसुलिन. टाइप 2, देर इज अ इंसुलिन इन बॉडी बट रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इज डिक्रीज्ड, देर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन. ओके, सो टाइप 2 डायबिटीज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टस. टाइप 3 डायबिटीज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डेफिशिएंसी. टाइप 4 नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मिल्टस. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन. तो इंसुलिन के ऊपर 6 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक. सो इंसुलिन इज द हार्मोन known as a hypoglycemic hormone. Insulin will decrease the blood sugar level by increasing its utilization. So insulin, ठीक है, इंसुलिन खत्म करेंगे इतना एंड विल स्टॉप हियर. ओके, इंसुलिन खत्म करें. सो विल कंटिन्यू दिस इंसुलिन. ओके, इंसुलिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं है तो क्या होगा आपके बॉडी में. इंसुलिन नहीं है, यहाँ पे लिखा है इंसुलिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, मतलब बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा. सो अभी इसलिए इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, डायबिटीज होगा. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इट इंक्रीजेज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ये क्या करेगा, इंसुलिन को सेल में ढकेल देगा, पुश करेगा, अंदर जाओ मर, उधर मर. ठीक है, सेल में जाके मेटाबोलाइज हो जा, ऐसा बोलता है इंसुलिन किसको, ग्लूकोज को. ठीक है, सो इंसुलिन विल इंक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज and produces ATP एनर्जी के लिए. डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ऑलरेडी ये देखा है आपने, डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को बनने नहीं देगा, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनेगा. ठीक है, देन इन द लिवर एंड मसल. ओके, इंक्रीज द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इंसुलिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इनिबिटेड. ग्लूकोनियोजेनेसिस भी क्या करता है, इंक्रीज द लिपोलाइसिस इन absence ऑफ insulin, increase the plasma level of free fatty acids, increase the gluconeogenesis in absence with the increased hepatic glucose output, increase the ketogenesis, decrease the lipogenesis and depress the cell mediated immunity. तो ये इंसुलिन का काम है, ऑलरेडी हमने देखा है ऑलरेडी. सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. सो विल सी दिस. ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. So insulin is the pancreatic hormone. Insulin is a pancreatic hormone. Okay? So insulin is a hypoglycemic hormone
प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंग्रेंस, तो वो लैंग्रेंस में कितने टाइप के सेल होते हैं वो भी देख लेंगे अपन, डोंट वरी। इंसुलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन 1921। जीपैट में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है। वन ऑफ द फॉलोइंग एज आइसोलेटेड इंसुलिन in 1921, Benting and Best. Benting and Best isolated the insulin, okay, from the pancreas. Now diabetes is nothing but the presence of sugar in the urine. Diabetes is nothing but the increased blood sugar level and presence of sugar in the urine. And patient is characterized by, कैसे कैसे समझेगा आपको डायबिटीज है इसको, बाय 3 P's। 3 P's नहीं है, 3 P's कौन से? 1 P इज अ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार उसको वॉशरूम जाएगा वो टॉयलेट के लिए, पॉलीयूरिया। पॉलीफैगिया मतलब बार बार उसको भूख लगेगा। एंड पॉलीडिप्सिया, अगर बार बार यूरिन को जाता है तो बार बार उसको थ्रस्ट लगेगा, पानी पिएगा। तो पॉलीयूरिया, पॉलीफैगिया एंड पॉलीडिप्सिया, दी आर नोन एज अ 3 P's। एंड अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया है, पॉलीफैगिया है, पॉलीडिप्सिया है, ग्लाइकोज यूरिया है, तो वो क्या है? डायबिटिक पेशेंट है। तो डायबिटिक पेशेंट देखो आप, जो जिसको डायबिटीज़ है उसने अगर कहाँ पे यूरिन किया ना, तो यूरिन के पास सब जो ये होते ना, मराठी में मुंगले बनते त्याला, सो चिटिया, सो चिटिया आ जाती है उसके यूरिन के पास। क्यों? क्योंकि इसके यूरिन में शुगर है ना, चिटिया कहाँ पे आएगी? जहाँ पे शुगर है वहीं पे आती है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर सुसु करता है कहाँ पे, तो वहाँ पे चिटिया आ जाती है। So these are the 3 P's to recognize the diabetic patient: polyuria, polyphagia, polydipsia। बहुत ज़्यादा पेशाब को जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको पानी पीने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी। व्हाट इज इंसुलिन? फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए। सो डेली कंज्यूम्ड शुगर मेनली कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड। आप जो डेली खाते हो ना खाना, पॉलीसेकेराइड्स एंड शुगर्स, डाइसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, मैं अंडरलाइन करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। सलाइवा कंस्ट ऑफ वन एंजाइम नोन एज अ सलाइवरी अमाइलेज नोन एज अ टैलिन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो सलाइवरी अमाइलेज, आपका जो सलाइवा होता है माउथ में, so that saliva has one enzyme known as a taline, PTYLIN, taline, P silent, salivary amylase. It is a salivary amylase. It will break down the disaccharide into monosaccharide। तो देखो आप अगर गरम गरम चपाती है, वो आपने गरम गरम चपाती लिया और उसको कुछ नहीं, बस उसको ही चबाते गए आप मुंह में, तो फाइनली आपको स्वीट टेस्ट आता है। Why? Because salivary amylase will break down the disaccharide into monosaccharide and convert it into glucose. So that's why sweet taste is there. Salivary amylase. Okay. So carbohydrate metabolism start from mouth itself. Okay. So salivary amylase is there. Salivary amylase metabolizes the sugar partly, but pancreatic amylase breaks down the polysaccharide into small pieces. Okay. Means oligosaccharides and then finally monosaccharide. Okay. एंड योर इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक ये एंजाइम होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज। योर इंटेस्टाइन, देयर इज अ ब्रश बॉर्डर्स ऑफ इंटेस्टाइन विल हैव वन एंजाइम नोन एज अल्फा ग्लूकोसिडेज। अल्फा ग्लूकोसिडेज विल present in the brush borders of jejunum and enterocytes. It breaks down the oligosaccharide into monosaccharides, and this is one of the target for anti-diabetic drug. तो ये क्या करता है? डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है फाइनली, और उसके बाद में एब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको इनहिबिट करेंगे, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। सो देयर इज वन कैटेगरी ऑफ ड्रग विच आर नोन एज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, दे आर यूज्ड इन द डायबिटीज। तो वो आप बाद में देख लेंगे, बट आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कौन सा एंजाइम का काम क्या है और क्यों वो ड्रग का कैटेगरी, राइट? ओके, सो मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates start from mouth itself. Salivary amylase will break down and it will convert into smaller pieces. Okay, salivary amylase metabolizes the carbohydrate partly, but pancreatic amylase मतलब pancreatic juice जो होता है उसमें जो amylase होता है, that will break down this polysaccharide into smaller pieces oligosaccharide.
and finally alpha glucosid is present in the brush borders in the intestine will convert oligosaccharide into monosaccharide. This is the target for anti-diabetic drug. Now utilization of glucose का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, फिर से एक बार मैंने पहले बोला कि इसमें अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही लेंगे, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन एंड अदर टिश्यूज, ब्रेन एंड अदर टिश्यू ऑल्सो, बट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ग्लूकोज फॉर ब्रेन के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही सोर्स है एनर्जी का, बाकी कोई नहीं। बट बाकी टिश्यू के लिए ग्लूकोज भी सोर्स है और बाकी टिश्यू के लिए लिपिड भी सोर्स है। अदर टिश्यू कैन यूटिलाइज ग्लूकोज एज वेल एज फैटी एसिड्स, अदर टिश्यू कैन यूटिलाइज ग्लूकोज एज वेल एज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी, बट ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल नहीं है, ठीक है, आपके बॉडी का शुगर लेवल कम हो गया तो आपको क्या होता है मालूम है? सबसे पहले आपको चक्कर आता है। आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं है, सबसे पहले आपको चक्कर आएगा और आप गिर जाओगे। देखो आप जैसे चक्कर आने के बाद में जाते हो ना हॉस्पिटल में, तो पहले वो क्या करते हैं, आपको एक तो ग्लूकोज का वाटर देते पीने के लिए, या फिर आपको सलाइन चढ़ा देते। वाई? बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। सो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो आपका ब्रेन काम करना बंद करेगा। सो दैट्स वाई अगर नॉर्मल पेशेंट अगर इंसुलिन लेता है, अगर मैं बैठा हूँ मुझे डायबिटीज़ नहीं, अगर किसी ने आके मुझे इंसुलिन मार दिया तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, मेरे बॉडी का शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा। बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ब्रेन में ग्लूकोज नहीं है, तो ब्रेन इज टोटली डिपेंड ऑन ग्लूकोज, तो ब्रेन को क्या मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिक, और ब्रेन का विकेट गिर जाएगा। मेरा राम नाम सच। तो फिर सभी लोग कल आ जाओगे मेरे पास, चलो सर गए गुजर गए, तो ऐसा नहीं। सो इंसुलिन डायबिटिक में ही यूजफुल है। अगर नॉर्मल पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन मारेंगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ये एज ए एजुकेशन पर्पज बोल रहा हूँ मैं, आप उसको मर्डर करने के लिए यूज़ मत करो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली इंसुलिन तो मिल जाता है आप मेडिकल पे, 2 इंजेक्शन लाओ, खींचो और लगा दो, पर्सन मर जाएगा। और वो कहाँ पे भी आएगा भी नहीं, ठीक है, कहाँ पे आएगा वो, क्योंकि उसने ना आपने उसको मारा है ना कुछ रखा है। ग्लव्स पहन के इंजेक्शन मार लो, ऑटोमेटिकली वो मर जाएगा, टेंशन नहीं है। फॉरेंसिक में भी नहीं पता चलेगा कुछ नहीं। फॉरेंसिक में क्या पता चलेगा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, क्यों कम हो गया है वो पता नहीं चलेगा। अगर वहाँ पे इसका मार्क आ गया, नीडल का मार्क, तो समझेंगे कि इसको इंसुलिन इंजेक्ट किया है। किसने इंजेक्ट किया वो बाद में फिर से वो, तो पकड़ने का चांसेस कम है, लेकिन है चांस है, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। सो इंसुलिन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन विल इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देगा एंड मेक पॉसिबल इट्स यूटिलाइजेशन बाय टिश्यू एट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑल्सो, एंड इट इज पॉसिबल only because of the insulin transporters. Is only because of the glucose transporter. Glucose transporters जो होते हैं, they are the specific protein, so which are produced in response to insulin. Insulin क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं प्रोटीन्स को, उसको सिंथेसाइज करता है बहुत ज़्यादा, एंड वो एंट्री करवाते हैं ग्लूकोज का सेल में। एंड इन द सेल ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड टू और फॉस्फोरिलेटेड एंड सेंट टू ग्लाइकोलाइसिस, tricarboxylic acid cycle and pentose phosphate pathway we have seen in the biochemistry. Okay, that's how it is utilized. Glucose level, normal fasting blood glucose कितना होता है बॉस? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये नॉर्मल है। इससे कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया। नॉर्मल से अगर कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, एंड ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। एंड अगर आपने अभी भी खाना खाया जस्ट 8, सो ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 170 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अभी अभी खाना खाया ना, इसलिए। पोस्ट पेरेंडियल मतलब क्या, खाना खाने के बाद में 3 आवर्स, खाना खाने के बाद में 3 आवर्स के बाद में चेक किया ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आएगा, 120 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग कितना है, 180 to 120, ओके। जस्ट 8 कितना है, 170 to 200। अभी भी खाना खाया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। पोस्ट पेरेंटल मतलब 3 आवर्स के बाद में, 3 आवर्स के बाद में थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग, जस्टेड एंड पोस्ट पेरेंटल। नाउ प्री डायबिटिक, डायबिटिक का खतरा किसको है, कितना ब्लड शुगर लेवल बॉडी में है तब आप बोलेंगे कि इसको डायबिटीज हो सकता है। सो प्री डायबिटिक, डायबिटिक का खतरा। सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इफ 101 to 125,
125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर है, प्री फास्टिंग ब्लड, सो यू आर प्री डायबिटिक। अभी खाना खाने के बाद, जस्ट खाना खाने के बाद में 190 टू 230, 190 से लेकर 230 तक आपका ब्लड शुगर लेवल है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जस्ट एट, सो यू आर सफरिंग फ्रॉम, यू आर अ प्रोबेबल पेशेंट ऑफ डायबिटीज। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल 140 to 160 है, सो इट इज़ अ प्री डायबिटिक। नाउ व्हाट इज डायबिटिक? डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? सो डायबिटिक ब्लड, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ डायबिटिक पेशेंट, सो इट इज़ अ 126 प्लस, मतलब उससे ज़्यादा 126 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जस्ट एट 200 220 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड पोस्ट पेरेंडियल है 200 प्लस मिलीग्राम। तो देखो नॉर्मल रेंज प्री डायबिटिक, डायबिटिक का खतरा हो सकता है, एंड डायबिटिक, जो डायबिटिक है उसका, ये तीनों का लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना होगा, प्री डायबिटिक का कितना होगा, नॉर्मल का कितना, नॉर्मल के ऊपर आ चुका है, डायबिटिक के ऊपर आ चुका है। डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जैसे मैंने बोला है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इट विल इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय फोर्सिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द सेल। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देगा, है ना, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसी साइकिल, तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एटीपी। सो इंसुलिन का काम यह है। नाउ डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो इंसुलिन क्या करता है, दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ओके, सो दे आर इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इनको बढ़ता है। व्हाट आर दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स? सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स दे आर नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, दे आर द कैरियर प्रोटीन। क्या है, कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, सीपी, कैरियर प्रोटीन, ओके। सो देर आर डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, सो इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ सेल, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द बेसल ग्लूकोज अपटेक, हेल्प्स इन द बेसल ग्लूकोज अपटेक, मतलब ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा वो, ठीक है, सेल्स में, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू GULT2 प्रेजेंट इन द बीटा सेल्स ऑफ लिवर, पैंक्रियाज, लिवर, हाइपोथैलेमस में भी होता है, आइसोबायलैटरल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। सो इट इज अ कैरियर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये इसको कैरी करता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 प्रेजेंट इन द न्यूरॉन, प्लासेंटा एंड टेस्टिस एंड ब्रेन, सो अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन दैट टिश्यू। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल में एंड एडिपोज टिश्यू में, सो अगेन एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन। देन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 present in the mucosal surface of small intestine, sperms and kidney, involved in the transport of fructose। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट्स हैं।